हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 226 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 226 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution's Article 226 says power of high courts to issue certain writs। 226 अनुच्छेद बताता है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में, कि जो रिट्स हैं उनको निकालने का जो निकालने की जो शक्ति है या जो पावर है वो किसके पास है? उच्च न्यायालयों के पास। तो उच्च न्यायालयों को कुछ रिट्स निकालने की शक्तियाँ ये 226 अनुच्छेद बताता है। 226 article says power of high courts to issue certain writs. Number 1, notwithstanding anything in Article 32, every high court shall have power. In Article 32, ये जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत एवरी हाई कोर्ट, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, shall have power, प्रत्येक उच्च न्यायालय को वो शक्ति है, वो अधिकार है, वो पावर है, थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच it exercises jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases any government within those territories, directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus. Nature of habeas corpus: mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को भी निकालने की पावर है, उसी तरह से हाई कोर्ट्स को भी। ये 5 प्रकार की महत्वपूर्ण रिट्स हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टियोरारी, or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by part 3rd and for any other purpose. Number 2, the power conferred by clause 1st to issue directions, orders or writs to any government authority or person may also be exercised by any high court exercising jurisdiction relation to the territories within which the case of action wholly or in part arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such government or authority or the residence of such person is not within those territories. Number 3rd, where any party against whom an interim order, whether by way of injunction or stay or in any other manner, is made on or in any proceedings relating to a petition under clause 1st without a furnishing to such a party copies of such a petition and all documents in support of the plea for such a interim order, and b giving such party an opportunity of being heard, makes an application to the High Court for the vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favor such order has been made or counsel of such party.
The High Court shall dispose. The High Court shall dispose favor. Sorry. The High Court shall dispose of the application within a period of 2 weeks from the date on which it is received, or from the date on which the copy of such application is so furnished, whichever is later, or where the High Court is closed on the last day of that period, before the expiry of the next day afterwards on which the High Court is open, and if the application is not so disposed of, the interim order shall on the expiry of that period, or as the case may be, the expiry of the said next day, stand vacated. Number 4. The power conferred on a High Court by this article shall not be in the derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause 2nd of Article 32. तो अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 1 अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद जो 32 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, अनुच्छेद 32 उसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 उसके अधीन अनुच्छेद 232 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, पामादेश, वेंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो एंड उत्प्रेषण रिट, सर्टियोरारी, उत्प्रेषण रिट, सर्टियोरारी, ये जो 5 प्रकार की रिट्स हैं या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। नंबर 2 किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट निकालने की खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में है जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतु पूर्णता या भागता उत्पन्न होता है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्य क्षेत्रों के भीतर नहीं है, तब ऐसे मामलों में। नंबर 3 जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश नंबर का ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसी अंतरिम आदेश के लिए अभिभाषक के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां और नंबर खा ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन को एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है या उसके काउंसिल को देता है। वहाँ उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इनमें से जो भी
पश्चातवर्ती हो या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, वहां उसके ठीक बाद आने वाले दिन की समाप्ति के पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है आवेदन को निपटाया जाएगा। और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश यथास्थिति उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा। नंबर 4, इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है साथ में नंबर 4 में कि इस अनुच्छेद द्वारा उस उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। तो ये था अनुच्छेद 226। तो ठीक है दोस्तों, कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 227 को, तो सॉरी 226 ए को पढ़ूंगी कल। ये है 226 और इसके बाद में 226 ए है, फिर 227। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।